Hello students, welcome to IIE. In this video, we are going to discuss about an important numerical you can see. So the numerical is this one. You can see two NPN transistors are getting cascaded here. So there are back-to-back NPN transistor and they have told to find the del I0 by del V from the below figure. So that means ये वाले figure से मुझे क्या निकालने होंगे? We have to find the value of this. We have to find the value of this. Mod of del I0 by del V in. So now, if you look at this, what is del I0? So del I0 by del V in इसका mod we need to find. We need to find this one. So ये मेरा सर्किट है. Now ये जो सर्किट है given यहाँ पे एक NPN ट्रांजिस्टर है. So let us assume this is NPN transistor and this is also a NPN transistor. So दोनों ही NPN transistor है. Now पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो numerical हमारे पास है, this numerical, in this numerical what you can do? We can do this numerical different method. बहुत सारे method है. आप इसको DC analysis कर सकते हैं. बहुत बड़ा conventional method भी होगा और बहुत सारे आपका tricky method भी है. So the best way here in this video what we are going to do, we are going to do the best possible way by which we can solve this numerical with a trick. So the important trick here to solve this is that if you look at this circuit, then let us say that this transistor is Q1 transistor. Let us say, and let us say this transistor is the Q2 transistor. So this is Q1 and this is Q2. Now if you look closely, तो Q1 ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल्स होंगे कहाँ पे होगा? ये वाला मेरा एमिटर टर्मिनल है. So emitter of Q1. Similarly, this one is the base of Q1 transistor. Similarly, this terminal is the collector of the Q1 transistor. Now go to the Q2. So Q2 ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल होगा ये वाला मेरा एमिटर टर्मिनल होंगे. 2 is for the transistor 2. Similarly the base is here and the collector is here. So this is the collector 2. Now first concentrate on this Q1. So Q1 पे हम concentrate करेंगे. आपको अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा कि ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है ये Q1 ट्रांजिस्टर कौन से मोड पे है, मतलब कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे कनेक्टेड है. नाउ इफ यू लुक क्लोजली देन यू कैन से दैट दिस Q1 ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस मोड. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, सर ये कॉमन बेस कहाँ से आया? कॉमन बेस ऐसे आया कि जैसे इफ यू गो फॉर द AC एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट, अगर हम लोग AC एनालिसिस पे जाएंगे और if you go for the DC analysis, तो DC analysis के टाइम और AC analysis में दोनों अलग अलग होता है. तो first if you think about the AC analysis, if you go for the AC analysis you have to put all the DC sources ground. तो ये वाले DC source को आप ground कर देंगे. तो जैसे ही ये वाला DC source को आप ground करेंगे, ये वाला DC source को ground करेंगे तो आपका base ground हो रहा है, मतलब ये common base हो जाएंगे. तो ये जो कॉमन बेस मैंने यहाँ पे लिखा, इसको समझने के लिए आपको ये वाले सर्किट को, ये वाले ट्रांजिस्टर को आपको AC एनालिसिस करने होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये पहला वाला ट्रांजिस्टर आपका कॉमन बेस मोड कनेक्शन पे है. सिमिलरली इफ यू लुक फॉर द Q2 ट्रांजिस्टर, देन यू कैन सी दैट Q2 ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ कॉमन एमिटर मोड. सो दोनों ट्रांजिस्टर कौन सा मोड पे कनेक्टेड है आपको पता चल गया. नाउ इफ यू लुक एट द Q2 ट्रांजिस्टर, तो Q2 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और Q1 ट्रांजिस्टर का एमिटर दोनों कनेक्टेड है. सो व्हेन आपके पास पहला क्या है, एक CD और एक है कॉमन एमिटर. ये दो टर्म है, common mode connection, common emitter connection. Now if you look at this E1 terminal, यहाँ पे कौन सा करंट है? I0, मतलब ये आउटपुट है आपका, कलेक्टर आपका आउटपुट है.
सो दैट मीन्स यहाँ पे जो एमीटर है, सो दिस इज द एमीटर एंड दिस वन is the collector. So now this collector terminal of this Q2 transistor is the output of Q2. Similarly, here E1 is the input of Q1 and this is output of Q2. So when the input of Q1 is connected to the output of Q2, इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए कि Where the common emitter, common base है, common emitter है, ये दोनों जो कनेक्शन है यहाँ पे एमिटर और कलेक्टर दोनों शॉर्ट सर्किटेड है, इसको मैं बोल सकता हूं आपका डायरेक्ट कपलिंग। सो डायरेक्ट कपलिंग कनेक्शन का है, डायरेक्ट कपलिंग कनेक्शन में जब आता है तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, इट इज नथिंग बट द कास्केड कनेक्शन। So actually ये जो सर्किट गिवन है, दिस इज द कास्केड कनेक्शन, और कास्केड कनेक्शन के लिए आपका डेल I0 by डेल Vin निकालने होंगे। सो डेल V0 डेल I0 by डेल Vin निकालने के लिए व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द टोटल GM ऑफ द सर्किट, ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल कंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ द सर्किट और डेल I0 by डेल Vin एक कास्केड कनेक्शन में क्या होता है? So if you remember the cascade connection, then you can say that the overall GM का मतलब क्या है? ये पूरे ट्रांजिस्टर का ओवरऑल GM, और GM मतलब होता है आपका डेल ऑफ आउटपुट करंट। यहाँ पे देखिए आउटपुट करंट गिवन है, इनपुट करंट आपका इनपुट वोल्टेज यहाँ पे है, सो करंट बाय वोल्टेज डेल V0। So this is the value of GM we need to find, and this is the overall GM of this circuit. And if you remember the cascade connection, for the cascade connection we know that the overall GM is nothing but the alpha AC value of the transistor Q1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Q1 into the GM value of 2, so this GM2। so alpha AC चाहिए आपको और GM2 चाहिए, तो GM2 तो गिवन है, GM2 का वैल्यू कितना है? 20 मिली एम्पियर पर वोल्ट। so let us put the value of GM2 as 20 मिली एम्पियर पर वोल्ट। now what is alpha AC? alpha AC कहां से निकालेंगे? यहाँ पे आपका बीटा वैल्यू गिवन है, so from this beta you can calculate the value of alpha। so अल्फा वैल्यू आपका आएगा यहां से बीटा बाय बीटा प्लस 1। सो बीटा वैल्यू आपके पास है 20 by 20 plus 1, तो यहां पे बिठा दीजिए 20 by 20 plus 1। नाउ इट विल कम आउट टू बी 20 by 21 into 20 into milliampere per volt। now if you calculate this, then it will come out to be 2 into 2 4, so for 400 divided by 21 milliampere per volt, and if you put this in the calculator, ultimately आपका जो GM value होंगे, GM overall, so this GM overall will be value of nothing but 19.0476 milliampere per volt। so this is the फाइनल वैल्यू ऑफ दिस GM जो आपको यहां पे पूछा गया था, ये वाला। सो इन दिस वे यू कैन एनालाइज दिस सर्किट। तो दिस इज द सबसे मेरा ये ट्रिकीएस्ट मेथड है जहां से मैं निकाल सकता हूं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं ये वाले सर्किट्स में, और भी प्रोसीड्यूर्स है बहुत सारे जिससे ये निकाला जा सकता है, बट ऑल द प्रोसीड्यूर्स, इसका अलावा ये वाले प्रोसेस के अलावा जितने भी सारे प्रोसीड्यूर्स हैं वो सारे प्रोसीड्यूर्स आपका लेंथी प्रोसेस होता है, थोड़ा कन्वेंशनल है, इजी है, बट दिस इज द ट्रिकीएस्ट थिंग। ट्रिकीएस्ट क्या है कि आपका जो ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, ट्रांजिस्टर सर्किटरी है, इसको समझना होता है कि ये मेरा एक कास्केड कनेक्शन है। ये अगर कास्केड कनेक्शन है, इसको अगर समझ नहीं पाएंगे तो ये वाला ट्रिकी मेथड आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका कास्केड कनेक्शन के बारे में जानना जरूरी होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गेट एग्जामिनेशन के पर्पस में। So this is the process, or this is the trickiest process by which we can solve this problem. Thank you.